Okay. Thank you. Thank you. Kashif? Yeah, hello. This is Kashif here. I'm currently a student of TIS and I'm also a student of ISTD in training and development. So my focus area is and my passion is also towards learning and development, training and development, e-learning, which is so much in vogue today, especially during COVID-19. So I'm excited to see how the next phase of education is going to be. Thank you. Saurabh, please. Hi everyone, I'm Saurabh. I have a startup called Clear Dekho. We have 60 plus optical stores across India. Thank you. Thank you. Muskan? Yes, sir. Hello, everyone. This side Muskan Surana. Right now, I'm pursuing MBA in Finance and CS, and I'm working with Goldman Sachs for last 1 year. And I also teach to 12th class students. Thanks. What do you teach? Maths? No, accounts only. Oh, accounts. Okay. Yeah. Sejal? Hello everyone, I'm currently working in learning while traveling as a country manager, and I did my graduation from Tathankar Mahavir University in BBA. Thank you. Thank you. Nandan? Hello everyone, my name is Nandan. I'm from Hyderabad. I'm founder at Preceptors Education Services Private Limited, preceptors.com, incubated from ISB, Indian School of Business, Hyderabad. Thank you. Thank you. Devjyoti, please. Hello everyone, very good evening. Hi, I'm Dev Jyoti. I'm currently working in KPMG as a consultant in human capital management. I basically take care of technology and as well as artificial intelligence and ML capabilities in human capital management based ERP functionalities. So was here because I have been closely related with Vishal sir for over a year right now, and had not been kind of getting an opportunity to catch up with the sessions and all. It has been more interacting. So I thought of like when he said that it's branding and also it is kind of like my area of interest. So I thought of joining this session and having a word with everyone over here. Thank you. So yeah, my name is Vishal. I'm the founder of Learning While Traveling, and we are doing this sessions for children and adults and students on various fronts via our LW2 Academy. Okay, so coming to our topic regarding this brand building. So first thing we can talk about this tagline that is used for most brands, like ठंडा मतलब Coca-Cola, डर के आगे जीत है. So these taglines पूरे दिमाग में जगह बना लेते हैं. ये मतलब यही है, like Dettol मतलब जो भी है ये इस टाइप से. तो इस पे let's take initial comments from people. So Devjyoti, maybe you can only start on this. So how important are these taglines and how people and how companies start with this? So Vishal, I would like to mention that there are 4 major concepts in branding when we are taking brand taglines and everything. So as a startup or as a platform, if we have as a startup, how we can leverage our brand, a small scale brand, how it can be leveraged. So 4 basic things which I personally think. First is the branding. So what if we think what is branding? Branding is nothing but creation of names. एक नाम होता है, एक symbol होता है, एक character होता है, एक slogan होता है. So if we say ठंडा मतलब Coca-Cola, or if we say any tagline which it comes in our mind. So if we say Johnny Walker, keep walking. So all these things actually gives us a identity of the brand completely. So what does branding do? Branding always helps us to protect a product. That is again a very important thing, because if we have a brand logo and a brand name in place, our product is protected against the various IPRs or intellectual property rights which we call in. Like Abhishek, I would say that it's very important that you protect your product using a brand logo, trademarking it, copywriting it. These are very important to protect as an intellectual property for you.
Second, creating unique positive association that differentiates your brand from the competition. So you might have competition in the market, but as a brand, like Abhishek said, his brand serves to various schools in niche areas of Bihar and as well as in West Bengal. So how will you create it as a brand in those niche areas? So you might have a competition over there. So how will you differentiate yourself? You said that you use Bluetooth. So that Bluetooth is a differentiator. So you can put in a brand logo, something, a Bluetooth logo kind of thing, using your technology kind of thing, and design a logo kind of centralizing around it so that your brand can be recognized by everyone. Second, it's all in the consumer's mind. So what I call it as brand, like brand equity. That is how the brand has an behavior and attitude in the consumer's mind. We have been listening this, even Economic Times on Wednesday publishes an article called as brand equity. So I would request everyone to go through that. Second, as Vishal said, Thanda matlab Coca-Cola, that's the brand identity. That is if we say Thanda, immediately in our mind it comes as Coca-Cola. So that's the identity of a huge brand that Coca-Cola has developed, and they have been able to relate it using picturization, using images, using symbols, using design. Their bottle design also, if you see, it will be very sleek, and all the things will be concerning around the cold. The Coca-Cola, if we see, Vishal, Coca-Cola doesn't sell cold drinks. I would say Coca-Cola sells happiness, or Coca-Cola sells comfort towards drinking, like in the summers, coolants. So these are all nothing but Coca-Cola tries to set a brand image in the mind of the customers. So that is called as brand identity. Taking these 4 points, I would request others to come in as well. Sure. So, Saurav, your case, I mean, you have already developed a brand, let's say before getting the funding and all. What strategies आप लोगों ने use किया brand presence बनाने के लिए? हम लोग ने कोई स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा कुछ डेवलप नहीं किया. बिफोर आई एक्चुअली आंसर दिस, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा लोगों से. कोई मुझे पेप्सी का टैगलाइन बताएगा बिना इंटरनेट पे देखे? अभिषेक, आप बताओगे? दिल मांगे मोर. नहीं पता ना? दिल मांगे मोर. अच्छा, शायद दिल मांगे मोर. ओके. कोई और बताएगा? ये दिल मांगे मोर, ये प्यास है बड़ी. और कोई? We have a lot of people and I'm sure everybody has seen Pepsi ads 1 lakh times and even drunk Pepsi. Yes, Naman, क्या बोले? हर घूट में स्वैग है, right? Yes. Hello, I'm sorry, I'm facing a bad internet connection. I'm sorry. No problem. स्वैग वाला सर, हर घूट में स्वैग है. हर घूट में स्वैग है. स्वैग है. तो कहने का ये मतलब है पेप्सी, कोका-कोला is equivalent to Pepsi. दोनों are $1 billion organizations, one of the biggest brands of the world, not only India. But there is so much of confusion in tagline of Pepsi. We heard 4 different taglines. So tagline isn't always important. Number 2, Thanda matlab Coca-Cola is known or in everybody's mouth or mind not because of the tagline but because of the ad which went viral, जिसमें आमिर खान और ये सब जो पूरा उनका जो चला था, जो सीरीज ऑफ कैंपेन चला था ठंडा मतलब कोका-कोला का, it was a viral video rather than any tagline or brand promotion or brand identity or brand guidelines. जो भी हमने jargons बोले, जो previous speaker ने बोले, so this is what I wanted to say. Next point, कोई भी product can be compared to a female. Let's say we talk about Aishwarya Rai. तो कोई बोलेगा world's most beautiful girl, कोई बोलेगा a girl with grey eyes, कोई बोलेगा fair skinned girl, कोई बोलेगा very pretty, attractive, sexy, hot girl, कोई बोलेगा 6+ height है उस लड़की का, golden बाल है उसके, कोई बोलेगा अभिषेक बच्चन की वाइफ है. So what I'm just trying to say is, या कोई बोलेगा अमिताभ बच्चन की बहू है, या कोई बोलेगा कि 1-2 बच्चे की माँ है.
So what I'm trying to say is every product, every person, every product, every brand has different brand parameters. So tagline होना is just another attribute जिससे आप किसी को recall कर सकते हो. So just like कोई ऐश्वर्या राय के बारे में बोल सकते हैं कि she is Miss World, कोई बोलेगा she is the most beautiful woman, कोई बोलेगा she is hot or whatever. So it is not a tagline. Having a tagline मेरे हिसाब से is not very important. It just adds on as one of the parameters for your recall. अगर कोई ब्रांड बहुत पावरफुल है तो वो बिना टैगलाइन के भी रिकॉल हो जाएगा. जैसे पेप्सी है, पेप्सी डजंट नीड अ टैगलाइन, पेप्सी का लोगो देखते ही बंदा रिकॉल कर लेगा. या मैकडॉनल्ड्स का कोई टैगलाइन बहुत लोग को नहीं पता होगा. मेरे को ही नहीं याद आ रहा है, पता नहीं फन बिगिंस या कुछ इस तरीके से है. आई एम लविंग इट. हाँ, तो उसका टैगलाइन है, याद आ गया. मतलब इट हैज अ स्ट्रॉन्ग रिकॉल. कोई बोलेगा आई एम लविंग इट तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ दिस इज मैकडॉनल्ड्स. बट स्वैग और पता नहीं दिल मांगे मोर फिर भी हिट हुआ था, शायद शाहरुख खान उस समय बोला था. तो इट इज मोर हिट बिकॉज ऑफ शाहरुख खान रादर देन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अब जैसे हाजमोला है, हाजमोला इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ब्रांड्स, लेकिन मुझे तो टैगलाइन ही नहीं याद आ रहा है हाजमोला का. या आप MDH मसाले कह लीजिए, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है. तो कहने का मतलब है इट हेल्प्स इफ यू मेक इट वायरल, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं. कमिंग ऑन टू क्लियर, देखो हमारा टैगलाइन है इंडिया लीडिंग बजट आईवेयर ब्रांड, बट हम कोई ATL तो करते नहीं है, तो ये तो हमारा टैगलाइन है. हमारे ब्रोशर्स में लिखा रहता है, वेबसाइट में लिखा रहता है, बट हमने कभी वी हैव नेवर वर्कड टुवर्ड्स ब्रांडिंग, क्योंकि ब्रांडिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए. एयरटेल ने तो सिर्फ लोगों की ब्रांडिंग करने के लिए 300 करोड़ खर्च कर दिया था. सो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी. जो भी हमारे पास पैसा है हम लोग उसे बहुत इफेक्टिव मार्केटिंग में यूज करते हैं रादर देन ब्रांडिंग. थैंक यू. बट वो इनडायरेक्टली ब्रांडिंग तो हो ही रहा है ना. आई मीन नॉट एज अ ब्रांडिंग बजट. नहीं, ब्रांडिंग बिल्कुल डिफरेंट है. ब्रांडिंग के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं. we have never worked for or we never had such funds कि हम long time results के लिए काम करें. हमें short term results चाहिए. मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझे 100 रुपए से 100 ऑर्डर लेने हैं, तो मेरा दिमाग वैसे चलता है. rather than 100 रुपए है तो मैं चलो यार सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ बनाता हूँ, कुछ ब्रांडिंग करता हूँ या कोई ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ. वो थॉट प्रोसेस कभी नहीं रहा है हमारा. मैं बोलना चाहूंगा कि ब्रांडिंग वैसा ही नहीं होता है जैसा कि आप सब बोल रहे हैं कि उसके लिए एक टैगलाइन होने की जरूरत है. टैगलाइन इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स. उसका कलर हो सकता है, उसका लोगो हो सकता है, उसके जो इंडोर्समेंट वाले लोग हो सकते हैं. तो ब्रांडिंग तो है. जैसे हर मौके पे कोई भी एग्जांपल डिस्कशन होगा तो सौरभ जी क्लियर देखो का एक नाम लेना मिस नहीं करेंगे, तो वो ब्रांडिंग ही हो रही है कि सौरभ दयाल के साथ क्लियर देखो का एक ब्रांड एसोसिएट हो रहा है. कि जब भी आप सोचो, बिजनेस की बात सोचो, चश्मा की बात सोचो, तो क्लियर देखो का नाम तो दिमाग में चढ़ जाता है. एंड दैट इज द इंटेंशन एंड दैट्स अ गुड थिंग. दैट्स द वे इट इज. कस्टमर के दिल दिमाग पर छा जाना. अब उसके लिए तरीके अलग हो सकते हैं. टीवी एड से हो सकते हैं, आप रेडियो से कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, या इवन व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं. बट इंटेंशन तो यही है कि मेरा जो कंपनी है, जो प्रोडक्ट है, वो लोगों के दिल दिमाग पे थोड़ा छा जाए, टॉप ऑफ द माइंड रहे उनके, और इन द हार्ट हो जाए तो और भी अच्छा है, कि दिल पे छा जाए तो और भी अच्छा है. मेरा ऐसा मानना है. So just adding on to his point in this, I would just like to say that what Mr. Kumar mentioned right now is kind of very correct in regards to and also what Saurabh mentioned right now regarding the brand. So I would say that all these three things comes in a sync together. It's as Saurabh mentioned about Aishwarya Rai Bachchan or even Sachin Tendulkar drinking a Kinley water in the desert of Thar along with people, kids over there playing. We remember that ad over there of Coke. So that is nothing but Coke used to tell that yes, it is there to quench the thirst. So it is basically to brand imagery. That is, if we take example of Clear Dekho over here, so the name itself says Clear Dekho. That means yes, we need specs. So if we see closely watch test matches in England, they say that their test matches are sponsored by a company called as Specsavers.
And Specsavers has a tagline called as "We are the test specialists." So they are basically an eye testing specialist company who is there. So their tagline relates with the England cricket, that is test match they sponsor over there. So that's how the brands actually create imagery in the mind of the customers. And that's all aligned basically in 3B, what we say, that is business, brand, and behavior. So it's all, I say, is related completely. Mm-hmm. Sure. Let's hear from other people. Neeraj, do you have any comment on this brand building tagline relation? In which brands you remember because of their tagline, probably as a consumer? सर मेरा मतलब अभी तक कोई ऐसा बिजनेस से कुछ ऐसा रिलेशन नहीं रहा है, बहुत ही एक सर्विस क्लास फैमिली से आता हूँ। नहीं एज अ कंज्यूमर भी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, तो उसमें ब्रांडिंग या इन चीजों से बहुत कम फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कस्टमर सर्विस से, और खासकर आफ्टर सेल सर्विस और वो सारी चीजें जो हैं वो कैसी हैं, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे लिए बड़ा ब्रांड हमेशा वही है जो मेरे साथ अच्छा बिहेव करे, मेरी अगर कुछ प्रॉब्लम है उनको टाइमली रिजॉल्व करे, और उनका एक जो भी है कस्टमर सर्विस अच्छा हो, एक बिजनेस करने का वो तरीका हो कि जिसमें कस्टमर के ऊपर फोकस हो। तो अपने वो कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा दुकानदार भी हो सकता है, मेरे को वो भी बहुत सही लगता है। कई बार घर के सामने आजकल सब्जी बेचने वाले आ जाते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका बिहेवियर कई बार ऐसा हिट करता है कि खुले नहीं है भैया, कैसे करूं कैसे करूं, कोई नहीं सर मैं कल आऊंगा या जब भी आपके पास खुले होंगे मैं इधर से चक्कर लगाऊंगा तो दे देना। तो वो जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है वो अपने आप में किसी को भी ब्रांड बना देती है मेरी नजर में। तो okay. So Vishal, can we have an activity right now? So normally in a branding things sessions we do have like activities. So I can tell you a few words and we can come up with a few brands associated with it, and that will help us to more relate to how what role the brands play and how brand identity and brands create a resonance also. So I would first say a word called as SAFE, S-A-F-E. Can anyone come up with the name of a company? Godrej. Yeah, Godrej locks. Okay. Next, Harrison. I did not get it. If you can repeat once again. Harrison locks. Harrison locks. Okay, Harrison locks. Yeah. Okay. Any other in terms of automobiles? There is a big company who invests around like every year around millions in Volvo. Yes, this is the name actually the world knows for SAFE. If we relate the word SAFE means Volvo, and Volvo has been investing in safety a lot in their ABS, in their safety features. So they are owning safety in the minds of the people. So that's how like brands are relating. Even we say Godrej locks are market leader in terms of the safe which we see in many businessmen's or in jewelry shops which we see as safe. Godrej has been a market leader in that a lot. So that's one of the word. Second word I would say is magical. Anyone can relate the word magical? Sunfeast. Sunfeast, yes. Okay. Yeah, good. Yeah. Disneyland. Any other one? Disneyland is the correct one, Kashif. Yeah. Disneyland is the correct one. Yes. So what Disney does is that they sell experience. So as a brand, my target is always to sell experience rather than to sell the product. I would completely agree with right now. Neeraj was speaking about the consumer experience which he receives from the nearby mom and pop shops or the kirana shops which is there. So that is what experience which matters for the brand. And Disney, if we go to any Disneyland Paris or Disneyland US, we see in various touch points
of the customer journey, there is an experience. You will find people interacting with you at every touch point. They will be ensuring all their employees are focused towards one point, that is experience. So Disney takes care of both the aspects, that is external branding and as well as the internal brandings, wherein their employees are also aware what to give it to the customer, and as well as in external branding, customers know more than the company nowadays. So they are kind of very aware of what customer is wanting, and they do normally what in MBA we call it as, or in business terminologies we call it as competitive benchmarking. So they do a competitive benchmarking over there, and in India normally we see along with competitive benchmarking is the price driving. हम लोग Amazon में जाते हैं तो Amazon या फिर कोई भी किराना शॉप में जाते हैं, we try to search for the best price. We try to filter it using sort, using low to high. That's how we shop. So that is where commoditizing comes to picture also in the branding. Yeah. Okay. Anyone can add on with it? Yeah. Anything? Anyone wants to add any comment on this? हेलो यस सर बताओ. यस मेरे को कहना है कि फर्स्ट हम लोगो पे बोलना चाहेंगे. तो लोगो जो होता है ना वो मेंटेन नहीं करता है कि जैसे मेरा रोबोटिक्स का है तो उसमें रोबोट ही दिखना चाहिए. लोगो मेरे ख्याल से एक इमोशनल चीज होता है. आपका इमोशनल अटैचमेंट उसे आ रहा है तो सही है. सेकंड चीज हम आते हैं, जब हम अपना LED बल्ब का स्टार्ट किया था तो उसका टैगलाइन रखे थे हर घर का उजाला. ठीक है. उसके बाद रोबोटिक्स में आए तो उसका रखें एक टुडे फॉर टुमारो. तो मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता है कि टैगलाइन और ब्रांड उतना मायने रखता है. वो लोग जितना टीवी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं उतना अदर चीज पे शायद कर दें. और खास करके स्टार्टअप के फील्ड में हमें बोलना चाहेंगे कि उतना सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करने का कोई मतलब नहीं है. मेरे को भी एक बार इस शौक हुआ था. एक एग्जांपल देंगे तो हम एक बिहार में एक चैनल है GTV पुरवैया. मेरे को भी इस शौक था कि एक छोटा सा न्यूज चैनल पे भी मेरा है. वो मेरे से क्या बोला कि मेरा मिनिमम ऐड आता है जिसको बिहार में उतना लोग देखते भी नहीं है GTV पुरवैया को, 10 से 18 सेकंड का. ठीक है. और एक बार चलाने का हम 1800 रुपया तुम्हारे से पैसा लेंगे. हम सोचे कि एज ए स्टार्टअप हम उसको 1800 रुपया देते हैं एक बार 10 सेकंड का ऐड चलाने का. तो दिन भर में 5 बार भी चलता है. उतना हम फ्री का वर्कशॉप करवा दें बच्चों के बीच में तो उससे बड़ा मेरा ब्रांडिंग हो जाएगा. और जहाँ तक बात है कि बड़ा ब्रांड हो सकता है कि बेंगलोर में कोई रोबोटिक्स का बहुत बड़ा ब्रांड हो, लेकिन बिहार में मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है लोगों के लिए वही बेंगलोर से भी बड़ा ब्रांड है, क्योंकि उनके पास अदर ऑप्शन नहीं है. एज फॉर एग्जाम्पल मेरा जहाँ पे LED सेल होता है उनके लिए हम ही सिस्का और फिलिप्स है. हो सकता है कि उनको कुछ लेना होगा तो वो फर्स्ट टाइम माइंड में आता होगा कि अरे ये लोकल है, हम उसी से लेते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा है. तो मेरे को नहीं लगता है कि खास करके हम ये स्टार्टअप को सजेशन देना चाहेंगे कि उतना मतलब मार्केटिंग पे और ब्रांडिंग पे खर्च करने का कोई मतलब नहीं होता है. वो पैसा आप अपने जो भी आपका टारगेट कस्टमर है उस पे खर्च कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा. So Abhishek, adding on to your point, I would like to say Vishal over here is that what he meant over here to say is basically he wanted to portray how without giving ads or without designing any logo or without adding a tagline, we can do some ATL, that is above the line, or BTL activities using a brand. So like what banks do normally to create. So banks normally क्या करते हैं, कोई भी सोसाइटी में चल जाते हैं एक वीकेंड को और एक छाता लगा देते हैं एंड दे सिट ओवर देयर. सो दैट इज नथिंग बट चुपचाप अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं बोल के वो लोग एक BTL एक्टिविटी करते हैं, बिलो द लाइन एक्टिविटी, कि चुपचाप कोई कॉलोनी में चल गए, वहां पे एक कंपाउंड के बीच में एक छाता लगा के बैठ गए उन लोग
opening some bank accounts. Similarly, Vodafone वगैरह, Airtel वगैरह इन लोग भी करते हैं ये सब चीजें, BTL activity, ताकि मार्केट को उन लोग कैप्चर कर सके. So this is one. Above the line activity जो आप बता रहे थे अभी अभिषेक जी, कि how you go to various schools, you tell about your propaganda, your business, your opportunities, how you reach out to other people. So over there, ATL activity बहुत important होता है as a startup, because yes, if we see not only in schools but like brands like Clear Dekho or other brands, what we can do, Saurabh, over here is we can put up some stalls in the malls as well, wherein we can put in the starting of the mall a kiosk kind of thing. Or right now during COVID, the BCP can be changing, wherein we can put in some good digital marketing strategies, wherein we can use some low-key digital marketing strategies, but हम लोग reach बढ़ा सकते हैं उससे. So that can be also done. Yes, ये चीज हम कहना चाहेंगे कि अगर आप अपना काम अच्छा से करते हैं ना, तो टीवी वाले या मीडिया वाले जो भी है वो आपको खोजते हुए आएंगे. आज का हम अपना एग्जाम्पल बतला रहे हैं. बिहार न्यूज वाला मेरे को कॉल किया कि आपका इनोवेशन सेंटर में हम आकर जो भी आपका इस सेंटर है उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपका, कि हम 2-3 दिन बाद आपकी कब फ्री हैं, आप आएंगे. उसी तरह रेडियो वाले, पेपर वाले, क्योंकि उन लोगों को भी न्यूज चाहिए, तो इन कंपेयर टू आप पेड प्रमोशन करवाते हैं और वो लोग आपको रीच करते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, कि क्योंकि पेड प्रमोशन मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, पर उन चीज़ों को वो बहुत कम लोग ही इग्नोर करते हैं. मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा. Let me give one example there, Jyoti, and then you can add. तो न्यूज़ का ही मैं बात करता हूँ. मैं किसी से बात भी कर रहा था. तो न्यूज़ में आने का 2 तरीका है. फर्स्ट है आप पे करें, ऐड बनाए, तो बोले ऐड चला दो. सेकंड है, या थर्ड भी बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं. सेकंड है आप पेड न्यूज़ चलाओ अपने लिए. तो इनडायरेक्ट वे हो गया थोड़ा सा, कि आपने पैसे दिए उस न्यूज़ के लिए. थर्ड है कि आपको न्यूज़ वाला मतलब ऐसा आप काम कर दो. आई थिंक फ्लिपकार्ट वगैरह ने किया था एक बार, फ्लैश सेल टाइप निकाला था या कुछ किया था, कि ऐसा किया कि सारा न्यूज़ ने कवर कर दिया उसको फ्री ऑफ कॉस्ट. इवन जियो ने किया था, फ्री सिम कार्ड फॉर 3 months. तो वो ऑटोमेशन में ही कवरेज होता चला गया. सो उस तरह से, सो नाउ द कॉस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज कैन बी डिफरेंट. अ पेड एड इज यूजुअली कॉस्टलियर देन कमिंग इन न्यूज़. सटल तरीके से अगर न्यूज़ का पैसा भी लग रहा है बहुत कम लगेगा और कंपेयर टू एड, और हो सकता है लगे भी ना, जस्ट आपने ऐसा काम किया कि आपको न्यूज़ में आ दिया. तो सर फर्स्ट वाला जो आप बोले ना, अगर किसी के पास पैसा है तो कोई कर सकता है कि भाई पैसा है मेरा ऐड चला दो. लेकिन जो आप थर्ड वाला वो बोले, उसके लिए आपको रियल में जो होता है ना, जमीनी स्तर पे काम करके दिखलाना पड़ता है, तभी आपको कोई अप्रोच करेगा. श्योर. हाँ, तो अब जो थर्ड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो क्या करें? या दिव्यज्योति प्लीज, आई थिंक यू कैन ऐड अप. सर जो थर्ड तक नहीं पहुंच सक रहे हैं उनके लिए मैं एक बुक रीड करने बोलूंगा, ग्रो बाय जिम स्टेंगल. It's a brilliant book. I would request everyone to read. From that book, I got one story which I would like to share with everyone. It is a competition between 2 big brands, और उन्होंने कैसे एक दूसरे को मतलब होता नहीं है, 2 big brands having the same product. So the product over here which I am talking about is a baby product which is Pampers and Huggies. So if we see, both are very dominant brand in the baby diaper market, if we notice. But एक टाइम ऐसा था कि पैम्पर इनिशियली ड्राइनेस पे पोजीशन करता था, कि रात भर ड्राई, बेबी विल नॉट क्राई, like that tagline they used to use. I'm not using the exact line, but that one they used to use to differentiate themselves. Huggies ने क्या किया? Huggies, क्योंकि Pampers के पास dryness का technology था, Huggies did not had that. Huggies started cost-based market leadership. उसने cost घटा दी अपने diapers की. Naturally, they became market leader. और
एडवर्टाइजमेंट्स पे उसने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, लाइक OOH बिलबोर्ड्स एडवर्टाइजमेंट, टीवी हो गया, आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट्स पे बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया था. इन द मीन टाइम पैम्पर्स व्हाट दे डिड वाज they did not spend anything in advertisement at all. They seized their ad budgets, they seized their billboard budgets, they seized their TV ad budgets. They focused on building a website. एक वेबसाइट पे उन लोगों ने फोकस किया, and what they did was एक वेबसाइट बिल्ड किया and started engaging expecting mothers by putting up a small outlet outside the labor ward of every hospital. They started engaging the expecting mothers till the baby development stages mein. They are registering those mothers in the website and they are helping to engage those mothers in the baby development. And also they started some CSR activities like with UNICEF and all. They started to show baby soap, baby wipes, baby diapers and all. So what they were doing, they were building the brand both inside and outside as well. They gave a change to their packaging, and end में 1.5 साल लगे उनको इस पे पूरा मेहनत में. End में they overthrew Huggies in the entire European market to become the market leader. So it is not only, yes, as he rightly mentioned, advertisements completely solution nahi hota. There are other ways wherein you can engage with the customers and you can do it. If big brands can do it, we can also do it. Like a website and hosting can be done, or we can use blogs as well. We can use, some brands use Google Forms, some brands use SurveyMonkey also. So there are ways to interact as well. How creative we can be for that. Acha, I have a question here. Yes, Kash. Right now we are dealing with more or less physical products के बारे में बात कर रहे हैं. We are talking about products which are tangible, जो हम लोग hold कर सकते हैं. But what about services, knowledge-based products? In that case, branding, like let's say कोई research-based कुछ हो रहा है, that's all knowledge-based. Like LWT as an organization, that's all knowledge-based. तो उसमें branding की क्या value हो जाती है? That I wanted to know. I get your idea from all of you. Example of a college which might have built a brand. Biggest example is Byju's. Byju's ने पूरा इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर ले लिया था. BCCI को पता नहीं कितना 200-400 करोड़ दे दिए. अभी ड्रीम 11 ने दे दिया. अनदर सर्विस, मतलब I don't know you'll call it a service or product, but it is not a tangible product, तो सर्विस कहलाएंगे. या अनअकैडमी और यूडेमी लोगों ने भी बहुत बिड किया था, नहीं जीत पाए. तो मतलब they have spent so much huge money. तो you can question them कि यार तुम्हें 400 करोड़ या 200 करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत है फॉर अ सर्विस. डिस्काउंट दे देते. तो उनका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होगा कि डिस्काउंट पेटीएम ने किया. पेटीएम वाज अ टाइटल स्पॉन्सर. मुझे याद है जब मैं पेटीएम में था तब 250 करोड़ की डील हुई थी. 250 करोड़ की डील हुई थी और 3 साल या 5 साल के लिए सारे ODIs का टाइटल स्पॉन्सर बना था. एंड एवरी मैच में ऑन टॉप ऑफ दैट 250 करोड़ दे यूज्ड टू पे 2 करोड़ या 3 करोड़ एवरी ODI. तो यू कैन से कि इसकी क्या जरूरत है. लेकिन at the end of the day, I'll club this with advertising वाला part जो अभिषेक ने बोला कि advertising की जरूरत नहीं है. तो अभिषेक, इसमें मैं आपको जवाब ये दूंगा कि you have to understand कि आज हम जिस लेवल पर हैं तब हम ये सब सोचते हैं कि एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है. जब आप एक लार्ज स्केल में खेलोगे और आपको 1.3 बिलियन को रीच करना है तो आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा. आपको क्या लगता है पेप्सी किसी को नहीं पता है क्या? तब भी वो एडवर्टाइजिंग डेली करता रहता है. या कोक किसी को नहीं, उसको जरूरत है क्या एडवर्टाइजिंग की? इसमें लाना चाहेंगे कि जैसे आप IPL या जो भी बात कर रहे थे, हो सकता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे कितना भी बिलियन डॉलर का हो, हर चीज में वो परफेक्ट नहीं हो सकता है. मान लीजिए कि वो 200 करोड़ रुपए या कितना भी खर्च कर रहा होगा, क्या वो उतना पैसा अंबानी के पास नहीं है. वो चाहे तो मतलब सारे मैच में रिलायंस और जियो का वो करवा सकता है. लेकिन आखिर वो भी कुछ सोच रहा होगा, तभी तो वहां पे ऐड नहीं दे रहा होगा. उसको जरूरत नहीं है ना, वो ऑलरेडी चीपेस्ट है. उसको क्यों ऐड देने की जरूरत है? टीवी खरीद लिया ना. यहाँ पे किया दूसरा तरह से ब्रांड. यहाँ पे बजटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है अभिषेक. तो एवरी कंपनी का हर साल का एड बजट निकलता है और बजटिंग का बहुत बड़ी रोल होती है. सो स्टार्टअप्स के लिए भी बजटिंग
एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे सौरभ ने कहा कि इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू मोर, तो वही बात हो रही थी विशाल से इन द इवनिंग रिगार्डिंग रीच एंड रिचनेस। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आंसर। नहीं, हम अपना ये कि बोलना चाहेंगे कि मेरा रोबोटिक्स का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं। हम अपना 50,000 रुपया टीवी एड में खर्च कर दे रहे हैं, ठीक है, उससे हमको क्या मिलेगा? अरे टीवी की ऑडियंस नहीं है आपके लिए अभिषेक। नहीं इसी पे इसी को समझेंगे, यही डिस्कशन है। टारगेट ऑडियंस पकड़, टारगेट ऑडियंस मान लीजिए कि हम टारगेट ऑडियंस पकड़ के फेसबुक पे तुम ये बोल रहे हो ना, डिस्काउंट दे दो टीवी एड में। यस, डिस्काउंट या उससे भी नहीं होता है तो वो फ्री करवा दो ना, किट अपना वो बांट दो, वो बच्चा सब जहाँ ले जाकर वो चीज खेलेगा। सबसे बड़ा ऐड तो माउथ टू माउथ होता है, दूसरे आपके बारे में कोई बोले। टीवी और पेम्पलेट देखकर कोई नहीं आने वाला है। जब अरे टीवी इंडस्ट्री क्यों बंद करवा रहे हो यार भाई? वो कमाएंगे कैसे? वो एक्टर्स को पे कैसे करेंगे यार? बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। फिर उसके बाद आप इंडिया का मैच कैसे देखोगे? टीवी में ऐड ही नहीं आएगा तो मैच दिखाना बंद कर देंगे। बाहर में जाए वो मैच। मोदी का स्पीच कैसे सुनोगे तुम? मैं बताता हूँ स्पीच कैसे सुनोगे? आज तक कैसे देखोगे ये बता दो। नहीं ठीक है, ये वैलिड क्वेश्चन है। सरकारी चैनल पे मैं वैलिड क्वेश्चन पुट कर देता हूँ। डिस्काउंट वर्सेस ब्रांडिंग बजट, ये क्वेश्चन है, राइट? तो सर आप बताइए पहले, आप योर ओपनिंग रिमार्क्स, डिस्काउंट वर्सेस ब्रांडिंग बजट। समझ में नहीं आया क्वेश्चन, फिर से एक्सप्लेन कीजिए। डिस्काउंट में पैसा दे देना है, कस्टमर को डिस्काउंट दे दे या ऐड चलाए, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? यही मतलब क्वेश्चन है ब्रांड बिल्डिंग के लिए। तो वो स्टेज पे डिपेंड करता है कि वो जो कंपनी किस स्टेज पे है। जब इनिशियल स्टेज पे है तो डिस्काउंट उसके लिए ज्यादा है, क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसके प्रोडक्ट को ट्राई करें, तो डिस्काउंट ज्यादा अच्छा है। बट कंपनी उस स्टेज पे अफोर्ड कर सकता है, उसका बजट थोड़ा ज्यादा है, तो देन दे कैन अफोर्ड टू हैव कि हम ब्रांडिंग करके अवेयरनेस बढ़ाएंगे और अपने आप कस्टमर खरीदना स्टार्ट करेंगे हमारा। तो इनिशियल स्टेज पे छोटी कंपनीज के लिए डिस्काउंट बेटर है, स्पेशली जो दुकानदार हैं, तो उनके लिए ब्रांडिंग से ज्यादा है कि मैं आपके पास में पड़ोस में हूँ, फल सब्जी बेच रहा हूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा हूँ, तो उनके लिए डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो चाहते हैं कि आप मेरा ही खरीदो, आप एप्पल ही खरीदो या आप गूगल ही यूज करो, या इस तरह के जो बड़े ब्रांड है तो उनके लिए ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है, या पेप्सी ही यूज करो, कोको कोला यूज करो, तो उनके लिए ब्रांडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग भी डिस्काउंट नहीं करते, वो लोग भी डिस्काउंट भी यूज करते हैं और ब्रांडिंग भी यूज करते हैं। बट जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए डिस्काउंट ज्यादा प्रैक्टिकल रिजल्ट देता है, क्योंकि उन्होंने 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेच दिया, कस्टमर ने तुरंत अपना लॉयल्टी चेंज कर लिया। सर एडिंग ऑन टू अतुल जी's पॉइंट ओवर हियर, मैं एक कॉमन एग्जांपल लेना चाहूंगा सर कि दिस डिस्काउंटिंग व्हिच इज देयर ना sir, this is also subject to availability sir, and if we see niche brands like Armani, Gucci, if we see, they do not give any discounts, they hardly give. Zara बहुत कम सेल देता है सर, अरमानी सेल ही नहीं देता कभी, कामा आयुर्वेदा they don't give sales at all. Even if I talk about SAP, as Kashif was telling about non-tangible thing, SAP, Oracle, they never give discounts. Google never give discounts. Why Apple? they don't? Apple also I guess doesn't give discount. Sir, Apple कभी भी डिस्काउंट नहीं देता सर, एप्पल का प्राइसिंग हमेशा फिक्स है, एंड दे डू द रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ एज पर एजिंग, दे डू द रिडक्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन प्राइसिंग strategy they use it. So why they do like that? Because of the availability. So local pricing can एक टाइप से अच्छा भी होता है, एक टाइप से खराब भी होता है एक टाइम। जैसे हम लोग कभी भी एक हॉलिडे पैकेज कभी भी बुक करते हैं, हॉलिडेफाई हो गया या ट्रिवागो हो गया, ये सब हो गया, तो हम लोग क्या चीजें देखते हैं? पहले हम लोग मैच करते हैं वेब प्राइस, हम लोग बंडलिंग करते हैं सर्विसेज को कि हम 4 दिन कहाँ जाएंगे, कैब लेंगे, कैसे लेंगे,
ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं, लाइक वी ट्राई टू क्रिएट, लाइक हम लोग एक सीनिक डेस्टिनेशन जाएंगे, एक कैंडल लाइट डिनर चाहिए हमें, ठीक है, नॉट स्ट्रेसिंग फॉर पेमेंट्स लाइक ऑन स्मॉल आइटम्स लाइक टोल वगैरह के लिए हम लोग स्ट्रेस नहीं करते हैं, सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए, सेंस और फील रिलेटेड. सो ऑल दीज थिंग्स एज काशिफ वाज टॉकिंग अबाउट इंटेंजिबल प्रोडक्ट. So this is what holiday package is, an intangible product which we sell it to the customer, and it is all an experience which we are selling it to the customer. So when we are talking about these things as a brand, I would say I have 4 questions which I need to keep in mind to know that when I can give value to my brand actually in terms of both tangible and intangible stuff. So I over here in terms when we call tangible मतलब नट बोल्ट होता है वो बिजनेस का, जो tangible चीजें होती है, और intangible चीजें होती है बेसिकली कल्चर हो गया, एटीट्यूड हो गया, बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द कंपनी, आपके एम्प्लॉय के बिहेवियर हो गया, ये सब चीजें एक ब्रांड के लिए एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है. Kashif, I understand your question was about the product that is intangible, that is softwares and RAP. I'm coming to it, but as a brand, overall, both like physical product and non-physical product, if we talk about, so as a brand, first and foremost thing which is important, what is your core competency? आपका core strength क्या है और किस पे आप focus करना चाहेंगे? Which one you want to focus completely? अगर आपका core strength पे आप focus करेंगे, you will always lead as a brand. First. Second, what is easier to get it right? हम एज अ ब्रांड बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम एज अ बिजनेस बहुत सारी गलतियां करते हैं, बट हमें सबसे सही तरीके से सबसे सही काम इजीली कैसे कर सकते हैं, ये दूसरा चीज है जो हमें एड्रेस करना है एज अ ब्रांड. तीसरा चीज है कि हमें कितना लंबा टाइम लगने वाला है इस ब्रांड को बिल्ड करने के लिए. 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितना लंबा टाइम लगने वाला है, बिकॉज जितना लंबा टाइम लगेगा, ठीक है, वो जर्नी आपका टुवर्ड्स द ब्रांड बिल्डिंग में बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल चेंजेस फिर लाना पड़ेगा. एज सौरभ जी वाज टेलिंग दैट व्हेन वी हैव अ brand that needs to be catered to pure entire world, then we have to take care of advertisement. So like that strategy needs to be changed. Fourth, which is most important, हमें हमारे बिजनेस या हमारे ब्रांड में ऐसा कौन सा चीज है जिससे हमें सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है. सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब इन द लॉन्ग रन, 10 साल डाउन द लाइन हमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. Like these crises, many startups are facing problems in terms of their operational efficiency, in terms of their manpower crisis, some in terms of their client or business procurement. So long term down the line, how we are managing or mitigating these functions which are these challenges which we encounter every might be every day or might be once in millennium, like COVID it came. So we have to be like open for everything. I would say if we keep these 4 questions in our mind, our brand value will be very good. First. Second, what we will see is that we will see a common practice in our organization and also within our customers, which London Business School calls it as people to practice system. And Tata's has adopted this practice, IKEA has adopted this practice, Hayat has adopted this practice, wherein what they do is that they stretch their objectives, they push their people, they remodel their system. Every week they do it, they pay as per performance, and they enhance customer experience. And detail oriented hona bahut zaruri hai agar hum as a brand कर रहे हैं. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग का एक लोगो है हमारे पास. विशाल, इफ यू कैन पुट दैट लोगो ऑन द स्क्रीन, LWT लोगो. या सो लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग का जो लोगो है हमारे पास, इफ वी सी अ स्मॉल डिटेलिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड ओवर हियर, दैट इज 2 planes फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बिलो. So that actually is very minute detailing that has been taken care of while keeping the brand in the mind. So all these things are very important when we are
like when we are communicating values of the brand to the customer, like values in the sense वो brand कहना क्या चाहता है. Like अभी Fair and Lovely का जो controversy हुआ, HUL dropped the word fair from the brand and they renamed it. Okay, इधर में इमामी जो जिसका पेटेंट है फेयर एंड हैंडसम मेंस क्रीम के लिए, they did not drop fair from their name, but HUL did it. So all these things actually matters also. Yeah, we have some comments. Sejal, please. Sejal, then Naman, then Hari. Yeah, Sejal. Okay. Sir, जो आपने डिस्काउंट वाला क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक समटाइम्स डिस्काउंट को भी एडवर्टाइज करना पड़ता है. करेक्ट मी इफ आई गो रॉन्ग. एंड सर ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, क्योंकि किसी के लिए कुछ वर्क करता है, किसी के लिए कुछ वर्क करता है. मे बी किसी के लिए ब्रांडिंग कर रही है, किसी के लिए डिस्काउंट कर रहा है. सो यू हैव टू लाइक नो द कस्टमर कि आप किन पे टारगेट कर रहे हो, एंड देन उसके बाद यू हैव टू डिसाइड द स्ट्रेटजी. Okay. Yes, Hari, please. Hari, are you there? Yes. Hello. Another comment? Yes, please. Yeah. So I have a question. Like there are many companies who don't do any branding as such, like not into advertisement or anything, but still like what is the take on that? Like, is it necessary or why the branding? Because Hari, hi, this is Devjyoti here. I would like to answer your question. I had faced this question many times. Like one of my uncle, actually, he has a grocery store, to be very honest. And he works by the principle of traditional marketing. So he was asking me that, do I need to brand my store? Because there are other departmental and supermarkets which is coming in Jamshedpur over here, and I'm getting skimmed off completely. So what to do for that? So I said to him that you are a traditional marketeer. You need to stick to your own domain over there, because over here, if we see what has laid the foundation to your brand, Hari, if I ask you that what has laid the foundation to your brand, or what makes your brand very distinctive, or what makes your brand, what attracts potential customers towards your brand? So it's a question to me? Yes. Okay, so I'm working with National Chromatography. So this is a B2B company. So like we deal in HPLC columns and consumables that is required in pharma industry. Over here, I don't see any type of like Absolutely, it's my first. Hari. Yeah, it's a very, very niche segment which you are working in. And over here in niche segments, I would say that we can use 5 principles, what I called is as a control structure principles in branding. So like first and foremost, we need to question ourselves, like as a salesperson or as an internal employee of the company, like what company has done to build trust amongst its clients or amongst its customers, what the company has done for that. First. Second, what has been your execution strategy all these while, and what has been your implementation strategies all this while, and where do you position your execution and implementation strategies next 5 years down the line. If you analyze these 2 things by drawing a line in between a page and writing it down, you will find a lot of differences in where you are right now and where you want to be, or where you want to see the company over there in terms of next 5 years. And also I would say you will find a lot of new opportunities opening, a new client doors opening for you. Third is integrating into one overall structure. So integrating into one overall structure is that I would say there are 3 basic foundation structures which is very important for a brand. First is the heritage of the brand. Your brand might be very old, like I would say
Marico or very old brands like if we say no, it's not an old brand. It's a new brand actually. If it is a new brand, then I would say the focal audience is very important. Then that is your stakeholders, then your customer, that is your potential customers, and then your employees. So stakeholders takes care of the business, but potential customers and the customers take care of the brand, and the employees take care of the behavior. That is your current employees and potential employees, that takes care of the behavior. So this gives you a resonating model. If we remember our physics class, the Newton's cradle, which used to be there, like the Newton's Newton's cradle, which used to be like this, and it used to go till the time it stopped. So that is the 3B model which I'm talking about, that it will resonate equally, so that it will stop at a point where all the customers will converge in. So you need to think it on a very broad scale, both customer value proposition and as well as you need to think it from the employee value proposition. Exactly. So Devjyoti, just to understand, like there will be much difference when we talk about branding in an FMCG as compared to branding in a B2B or industrial sales, right? Absolutely. So here the branding is basically done by employees itself. Absolutely, yeah. Okay. So we are just an 8-year-old company actually. Yeah. So yeah, so like if we compare with the competitors, they are much older, like Agilent, Waters. So they are around 40 years and 50 years old. So as compared to them, we are new, but there are many other new players also who are coming in. So that's the thing. So I would like to give an example over here, like what CEO of HCL used to say, Vineet Nair used to say that customers first and also customers are second as well. So what they are telling is over here is that our if we take it as a triangle over here, if we think it as a triangle, okay, the customers are on the top of it. Okay. After that comes the employees. Okay. Right. After that comes our business enabling functions, which is there. Okay. And in the bottom, this is management. And overall, if we see, there is a 360-degree feedback which is going on everywhere. So that is very important for a brand to be holding its true identity. So your core competency is HPLC, or your core competency is the chromatography strips, which is there. So you should be able to take it on a whole. So even employees are talking branding chromatography strips. Outside, when they are talking to the customers should talk to the employees about chromatography strips, so that yes, they can talk more about it, so that baat karne se baat badhega. Or that is what the basic funda will be for B2B or for industrial marketing. Because nowadays what people do, I would say it's a malpractice in the industry, like they take it to a hotel, they try to convince it by bribing it. It's a very, very not ethical practice, business ethics, which I suggest, being from a Big 4 company. I do not suggest doing that. Rather than that, I would suggest take it like in your own competency way, interact more. There might be resistance, there might be a wall in between. We need to break the wall as a salesman, wherein our selling skills comes to picture, and then we need to have more meetings and then onboard the customer with us. That's how it is actually. Right. We do provide demos also, like demo in the trial. Yeah. So that is part of the strategy that we are doing for branding. So we give a trial for the customer, and for 1 month, if they find it okay, like usually standard time is 2 weeks, but usually they go till 1 month, then they will give the feedback, and ultimately they will purchase our product. So, absolutely. So Hari, I was just we can say it as you are using an agile methodology of business, I would say it, wherein you are in a constant feedback loop with the client regarding how your product is performing, and then you are getting back to your production team, giving the feedback for that. So that's I would say is a sustainable practice,
and other business can also take it ahead, and agile practice actually helps in the business. Okay. Yeah. Let me also quote one more example, others can add. Jio का ही example देते हैं. पहला 3 महीना बहुत ही pathetic service था compared to, let's say, other competitors. I mean, I used it that time, but because free था तो कोई कुछ बोला नहीं. Like what Devjyoti is saying कि वो feedback loop है, right? I mean, वो feedback ले लेके feedback भी मिला तो मतलब कोई चढ़ के नहीं feedback दिया, बोलेगा हाँ ठीक है थोड़ा सा ये है देख लो थोड़ा सा ठीक है. तो मतलब it was like a nice way of getting feedback, giving it for free trial बोल सकते हैं. जो अभिषेक ने भी बोला इनफैक्ट कि डिस्काउंट, तो आई थिंक हरी जी आपने भी ट्रायल बोल रहे हैं, इट्स जस्ट अ नेम चेंज. और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसको स्कॉलरशिप बोलते हैं. करेक्ट, एनालॉगस. So it's just naming this in a way to suit the customer या जो भी the consumer कि उनको क्या सुनना अच्छा लगता है. अब मैं स्टूडेंट को अगर ये बोलूँगा ना मैं तो डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो स्टूडेंट बोले ये डिस्काउंट क्या होता है, मतलब इट विल नॉट हिट द स्टूडेंट सो मच. बट स्टूडेंट बोले स्कॉलरशिप मिला है तुमको, अरे स्कॉलरशिप है ना, मतलब प्रेस्टिजियस, इज्जत आ गया. पैसा मतलब बिजनेस कैश बुक वाइज में नंबर वैसे ही ऊपर नीचे होने वाला है, बट जो काइंड ऑफ अ पोजीशनिंग आई विल से दिस डिस्काउंट पोजीशनिंग बोल सकते हैं या जो भी है, मतलब ब्रांड पोजीशनिंग इन अ वे how you're doing it. Yes, Devjyoti, maybe you can add. Hariji, I would like to say over here, if you want, you can also measure like since you are giving it as a sample to various your customers, you can measure it also, and I would suggest that you can measure it like how your product is delivering a brand experience to the prospective customer. So measuring can be done by 3 ways again. First question is you tell your employees and as well as to yourself that how I line up in terms of my competition. Where do I line up? Suppose मैं बचपन के असेंबली लाइन में खड़ा होता हूँ, हम लोग सब सेम क्लास के बंदे हैं, तो मैं क्लास के कौन से जगह पे खड़ा हो रहा, 7वां नंबर पे कि पहले नंबर पे कि तीसरे 30th नंबर पे. So where do I line up in the competition? You can take it and I would say segregate your competition regiocentrically, then nationally, okay, and then take it internationally, so that you know that what all are like. It is like a Venn diagram kind of thing, or we say a plot chart kind of thing, wherein a chart within a chart and there will be within a chart, so you know that आपको कितना बढ़ना है. I like to share one practical experience, Devjyoti. Explain me how to deal with it. Yes, sir. Okay, so this is a product that is used in R&D basically. Yes, sir. Yes, sir. I'm a biotech student, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, then no need to go into details. So yes, you are an sir, expert. Yeah. Person, So what is happening when we give the chemistry, like particular chemistry column to the user? So we are not using it for trial. They'll keep it for 1 month. They won't use it at all. Like the trial, while taking, they will initially they will say yes, definitely we'll try out your product and we'll let you know. But after 1 month, 2 months, we don't get any feedback. So things start changing. Like our inventory is stuck up at their end, and we are not getting any value addition with that, right? So yes, how sir. to overcome this? Like we do take follow-ups, like mail follow-ups. Everything is there at its place, but still yes, sir. जो काम बनना चाहिए वो काम नहीं बन रहा है. वो प्रोडक्ट भी ले लिया है. Completely. Yes. सर ओवर हियर ये सेम चैलेंज पता है सर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स लोग भी फेस करते हैं. जब वो नया कोई दवाई का प्रोडक्ट कोई डॉक्टर के पास लेके जाता है, वो भी ड्रॉयर में फेंक के रख देते हैं सर. तो उस टाइम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है ना सर, वो कारपेट बॉम्बिंग करता है. कारपेट बॉम्बिंग मतलब वो शहर के जितने डॉक्टर्स है ना, सबको देगा वो मेडिसिन. एक ये तरीका है, वी कैन डू इट. ये बहुत थोड़ा मेहनत पड़ता है इसमें यू स्प्रेड सपोज. हाँ, so this is one of the way you can do it.
Second is that you need to make your product a signature product. That is like सर आपको chromatography paper है सर, chromatography paper में सर like it's all coloring which is there, but उसमें क्या signature क्या column one, okay, column one. So if we do it in a column chromatography sir, उसमें आप क्या difference करते हैं या फिर आपको कहाँ आपका brand दिख रहा है market पे for a long time. You need to see that sir, basically over here, because what happens is that 40-50 साल के competitors के साथ आप compete कर रहे हो, so and they have their heritage business over there and you are new over there in the line, so आपको कुछ differentiate करना ही पड़ेगा in terms of deep discounting, in terms of pricing, or in terms of your you can say gifting strategies, like sir if you like what MRs do normally, doctors को gift करते, like if you sell, if you like if you promote our product or kind of like this thing. Yes, तो ऐसा कुछ एक आजकल it's not that easy. Yes sir, yes sir. Cannot be done, and if you are caught in such malpractices बहुत बड़ा risk हो जाता है. So I'm not suggesting you like gifting strategies, giving huge gift like that, which is more than as per government policy we cannot gift more than around like 5,000 कुछ के ऊपर नहीं. So वैसा नहीं करना आपको gifting आपके ही product से करना है sir. Like if you sell 1,000 pieces of my product, okay, if you buy 1,000 pieces of my product, in your next purchase I will give you a 10% discount or a 20% discount, or I will in your next purchase might be a bumper bonanza where I'll give you double the product than what you have consumed right now, so that आपका inventory भी निकल जा रहा है साथ में, आपका cash flow भी बराबर आ रहा है आपके पास, ठीक है, and along with it your product feedback loop is also on a continual basis. So 3 things are already intact over there. Your cash flow remains intact, your cash flow continues, although on a slower proportion, but ये continue होता है. Inventory stuck नहीं हो रहा, inventory आपका clear हो जा रहा है क्योंकि आप second time उसको product पे offer दे रहे हो. Either I would say give him a product offer rather than a pricing offer. जैसे आप अगर अभी अगला बाई में अगला परचेज में मैं आपको 20 पीस ज्यादा दूंगा, ये नॉर्मली डीलर्स लोग करते हैं, नॉर्मली इन FMCG या मेडिकल में भी करते हैं लोग, डीलर्स लोग. सो यू कैन टेल दैट so that your inventory line is continuing, your cash flow is continuing, and also your product is in feedback loop, so that your product आपका मार्केट में घूमना चालू हो जाएगा. रोलिंग एक बार प्रोडक्ट चालू हो गया ना मार्केट में, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपको मार्केट को परखने में और फिर कैप्चर करने में धीरे धीरे. तो वो रोलिंग बहुत जरूरी है प्रोडक्ट का. And to be very honest, I have seen in Calcutta, Vishal ji, if you remember, there is a place called as Ejra Street in North Calcutta. I remember like Poddar Court and Ejra. That's a electronic traders market which is there. I've seen lot of traders doing that with their electronic products, and there what I have learned this idea of doing it on how to roll the product. कपड़े के स्टोर में भी होता है. हाँ सर, ये दुर्गा पूजा के टाइम जो डिस्काउंट देते हैं, दुर्गा पूजा या कभी भी पहले एक प्रोडक्ट दिखाओ. पहले एक प्रोडक्ट दिखाओ, लाइक से 5,000 का, उसके बाद 2 महीना बाद उसको 2,500 का बेचो, बोलो 50% ऑफ हो गया. अब जनता तो देखेगी 5,000 का चीज 2,500 में मिल रहा है, तो जल्दी से ले लो क्योंकि वो 5,000 का भी चीज देख रहा है बगल में. बट नो, I was giving example कि वो इवन 2,500 में भी वो प्रॉफिट कमा लिया होगा 10-20%. तो और उनका इन्वेंटरी भी, मतलब वो 2-3 महीने का उसने बना के रखा कि 3 महीने का ये स्ट्रेटेजी है, 3 महीने में क्लियर कर देना है इसको. और इवन एट टाइम्स कैन गो लो आल्सो. सो आई थिंक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आजकल बहुत जरूरत है अपना इन्वेंटरी मैनेज करने का और कॉस्ट टू कॉस्ट इवन एट डिस्काउंट दे देने का. इनफैक्ट अभी हम लोग और डिस्कस किए थे एक बार, ऑयल कंपनीज का हुआ था ऐसा कुछ. सॉरी एक मिनट, इको आ रहा होगा शायद. हाँ, ऑयल कंपनीज का किया था कि नेगेटिव ऑयल प्राइसेस चले गए थे एक टाइम में,
सो दैट वाज प्रीटी मच कि यू नो वो तेल रखने का जगह नहीं बचा उनके पास तो बोला ले जाओ भाई किराया देने का पैसा नहीं है, किराया बचा लेंगे। Anyone has any other comment question? Yes, Devjyoti, please. हाँ नहीं सर, go ahead सर, बस हाँ नहीं, मैं और लोगों से ही पूछ रहा था, और किसी का? हाँ यस अमन, हाँ प्लीज। सर कुछ है नहीं सर, मैं उसमें अपना कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू से बताना चाहता था ब्रांडिंग से कैसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए किया, किस तरह से ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट किया। लाइक स्टार्टिंग में मैं आपको स्मॉल स्टोरी है, एक मेंटोस आता था, एक सिंपल सा है, दिमाग की बत्ती जला दो, ठीक है। तो ये बच्चों में सर इस टाइप का होता है कि कोई भी एग्जाम अगर आ रहा है आपका, तो आप मेंटोस खा के जाओगे कि आपके दिमाग की बत्ती जल जाए और आपका एग्जाम जो काफी अच्छा हो जाए। तो इस टाइप की मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा होती है कि एग्जाम दो, और एग्जाम के समय पूरा 10-10 पैकेट हम लोग लेके थे और उसको उस समय खाते रहते थे कि एग्जाम के टाइम के कि दिमाग की बत्ती जले रहेगी, उस तरह से एग्जाम हमारा काफी टन जाएगा। एक ये हो गया। और दूसरी मार्केटिंग मुझे वहां पे लगती थी कॉम्प्लान या आपकी बॉर्नविटा का। अभी तो लोगों ने बंद कर दिया है दूध पीना, या फिर ज्यादा वही चीज करते हैं। बट उस समय क्या होता था कि बॉर्नविटा पियो और आपको एनर्जी आ जाएगी। तो उसके लिए मैं सब बहुत पिया हूँ सर। मेरा मतलब हाइट बहुत छोटा था मेरा, ठीक है, मेरी हाइट इतनी लंबी नहीं थी, मैं कॉम्प्लान से बहुत पिया हूँ सर, जिद करके कि कॉम्प्लान ही चाहिए कि मुझे लंबा होना है। तो उस टाइप की मार्केटिंग से बिल्कुल आई थिंक कि बिल्कुल रिजल्ट लाती है कि अब मुझे लंबा होना तो मुझे कॉम्प्लान पीना पड़ेगा। बट अभी तक बाद में अचानक लंबा हो गया थोड़ा सा कि इज्जत मिल जाए, कोई दूसरा कुछ बोले नहीं। यस सर, बट उसका कॉम्प्लान का कोई रोल नहीं था या बॉर्नविटा का कोई रोल नहीं था, वो मुझे अभी पता चल रहा है। बट उस समय एक लगता था कि वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए। और सबसे बड़ी जो मार्केटिंग मुझे अभी जो लगती है वो थी अभी फॉग की। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। वो मतलब गजब मतलब हुआ था, मतलब कि आप कहीं भी जाओ, मतलब आपको एक चीज पता होगी कि अगर आप टॉप 10 परफ्यूम कंपनी की सर्च करोगे तो फॉग बिल्कुल नहीं आता है जो सबसे अच्छी परफ्यूम देता हो, या फिर क्वालिटी वाइज कुछ भी नहीं है। बट मार्केटिंग ऐसी थी कि आप कहीं दुकान में जाओ, फॉग अवेलेबल है। दो चीज थी कि मार्केटिंग भी उनका बहुत तगड़ा था कि हर एक मुंह पे आ गया, और डिस्ट्रीब्यूशन था कि हर एक छोटे से रिटेल स्टोर पे भी आपको फॉग अवेलेबल है, क्योंकि आदमी बोलेगा ही कि परफ्यूम नहीं बोलेगा, फॉग चाहिए मुझे। तो वो मार्केटिंग मतलब बहुत शानदार होती है, और उसकी जो चीज होती है ना वो आपको एकदम दिमाग पे लग जाती है। लाइक आप फ्रेंड सर्कल में जा रहे हो, क्या चल रहा है भाई, तो अपने अपने कंपनी वाला ही बोलेगा, ऐसा नहीं क्या चल रहा है, अरे फॉग चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है। तो इस टाइप से जो मार्केटिंग होती है ना सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक ये जो थी, आई थिंक इसको कोई नहीं भूला होगा। क्यों नहीं भूला होगा? क्योंकि यस सर अमन, ओवर हियर आप जो बात कर रहे हो ना, वेरी ऑनेस्टली, मतलब सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट आप बात कर रहे हो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी की। सो ये एक्चुअली जो फॉग चल रहा है मार्केट पे, या क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ये बेसिकली फॉग ने फेमस नहीं किया है, आई वुड से ऑगिल्वी एंड मैथर ने फेमस किया है, क्योंकि उन्होंने एड ही ऐसा डिजाइन किया था फॉग के लिए कि वो एड लेजेंडरी बन गया और वो ब्रांड को लेवरेज कर दिया। सो ये एडवर्टाइजमेंट, ये IMC बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का मैसेज इतना क्लियर था टू द पीपल दैट लेवरेज्ड अ ब्रांड। एक और एग्जांपल अमन जी आप देखे होंगे, डव की एड, या हम लोग सबको टीवी में डव की एड देखे होंगे हम लोगों ने, और डव के एड में डव हमेशा बोलता है, व्हाई डू वी नीड टू मेक द कस्टमर्स लुक अगली इन ऑर्डर टू सेल आवर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। They will always use people directly from their homes or directly from the streets in the ad. They will use mothers, sisters, housewives, or directly from there, because उन्हें local brand की challenges आती है। हरी जी, ये आपके लिए बहुत important चीज है to note, local brand challenge और legendary brand challenge which has been there. So उनके लिए बहुत simple था, conduct workshops, simple and clear message। हमारे लिए डव का जो ब्रांड का ये है, डव मीन्स आपको प्योरिटी, डव मीन्स डव का कोमलता पे उन्होंने पोजिशनिंग किया था, सॉफ्टनेस पे। सो यू नीड टू पोजिशन योर प्रोडक्ट लाइक दैट कि हम एक कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करेंगे, हमारा कोर कॉम्पिटेंसी ये है। सो और उस पे हम लोग चेंजेस लाते रहेंगे।
डव ने क्या किया, कल्चरल चेंजेस लाया। तो आप एज अ B2B, ये B2C सिनेरियो था, B2B में आप क्या ला सकते हो, आप क्लाइंट के माइंड शिफ्ट में या परचेज पैटर्न में चेंज ला सकते हो, और आप मार्केट डिसरप्शन कर सकते हो। आप बहुत यंग हो मार्केट पे, 40 साल के कॉम्पिटिटर्स को मार्केट डिसरप्शन नहीं मींस इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डू अ मार्केट डिसरप्शन। आप नए हैं मार्केट में, जियो ने क्या किया, जियो ने मार्केट डिसरप्शन कर दिया। वोडाफोन एयरटेल इतना दिन से था मार्केट पे, जियो आया मार्केट डिसरप्शन कर दिया। अब वोडाफोन एयरटेल को सोचना पड़ता है कि हम क्या रखेंगे सो दैट हम जियो को टक्कर दे सकेंगे। सो एज अ न्यू कॉम्पिटिटर आप एंटर कर रहे हैं मार्केट पे, आप डिसरप्शन कर दीजिए स्ट्रेट अवे। वो 50 साल वाली ब्रांड्स जो है ना, वो सीधा नीचे आ जाएगी आपके बराबर, उनका पूरे, दैट इज कॉल्ड एज डिसरप्शन इन द मार्केट। भी है, लेकिन थोड़ा रिस्की भी है, ये रिस्क रिटर्न है लेकिन रिस्क है। अंबानी took that risk honestly। अंबानी का भाई also took the risk, वो तो गिर गया। तो हम लोग एक साइड का स्टोरी देखते हैं हमेशा। honestly इसीलिए मतलब यस सौरभ सर any inputs? yes sir, हरी जी yes। हाँ, मेरा एक देवज्योति, you are working with which company? I currently work with KPMG। KPMG, right। Oh, just want to understand कि branding, coming to branding, so there are some public limited companies और कुछ government companies है जो branding मतलब वहाँ पे कैसे मतलब they are not doing any branding। Let's take example of banks, SBI, ICICI, HDFC, सबका अपना branding है, but yes sir, when coming about government banks, कोई branding ऐसा दिखाई नहीं देगा। In the same way, if you talk about railways या any other government sector, तो कोई branding as such मतलब it's not branding, still it's not there। So, yes sir, why yes, is it like that? so basically Sir, can I आप say जो something? बात कर रहे हैं, yes Sejal wants to add, please Sejal, you add, then Devjyoti can answer, yes। हाँ हरी सर, उनके पास ब्रांडिंग तो है ना, सोशल वेलफेयर ब्रांडिंग है उनके पास भी, गवर्नमेंट का ब्रांड है। हाँ, उनको जरूरत ही नहीं गवर्नमेंट है का ब्रांड branding है, का, गवर्नमेंट ने ऐसा सील मार मोनोपोली दिया। है ना सोशल रेलवे का। वेलफेयर है, पता है कस्टमर को उनका फायदा होना है, सो दे विल ऑब्वियसली गो फॉर गवर्नमेंट इट। बैक्ड है ना, गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स हाँ, सबसे ज्यादा बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, और सर रेलवे तो मोनोपोली है, तो उसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। नहीं, मोनोपोली कहाँ है अभी, प्राइवेटाइजेशन हो गया इसका भी, हो गया। अभी कहाँ ट्रेन प्राइवेट वाला चल रहा है? अभी चलेगा वो- तब देखा जाएगा। नहीं, रेलवे का जब मोनोपोली होगा तब होगा ना, अभी तो नहीं है ना। नहीं सेजल, रेलवे का मोनोपोली केवल उस मीडियम में है, बट रेलवे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में उसकी बहुत कॉम्पिटिटर्स है ना। लोग कार से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं। तो मोनोपोली तो तब हुआ कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो कब मुझे जाना है, और अगर मुझे सर लगता है कि इतनी रेलवे आबादी है कि 1% जनता भी जाएगा तब भी ट्रेन के ऊपर चढ़ के जाएगा। जरूरत नहीं है ब्रांडिंग की। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी मोनोपोली यहाँ पे भी प्राइवेट प्लेयर्स तो है ही। केटरिंग तो रेलवे नहीं देखता है, IRCTC इज अ प्राइवेट प्लेयर, तो केटरिंग ज्यादातर चीजें उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइज हो चुका है, मतलब वही स्टेशंस को भी उन्होंने मेंटेनेंस उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है। करेक्ट, उसकी सफाई का काम प्राइवेटाइज, ज्यादातर चीजें रेलवे की प्राइवेटाइज हो गई, आउटसोर्स कर दिया है। मतलब एक पार्टीज को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। सो एज सच गवर्नमेंट का कोई रोल रहा नहीं वहां पे। ये उनका ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी था कि बहुत गाली मिल रहा था, चलो प्राइवेटाइज करो ताकि अब गाली कोई और खाएगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ लोकल्स का। मुंबई के लोकल्स में हार्डली 1% लोग टिकट खरीदते होंगे, यानी 5 पकड़िए मैक्स टू मैक्स, 5 से 10%। बाकी सब टिकटलेस ट्रैवलर्स है। रेलवे कोई टेंशन लेता नहीं है इसका, उसको बोलता है चलो चलने दो जैसी चल रही है, क्योंकि वो 5% में भी उनको इतना इनकम हो जाता है कि बाकी 100 को पकड़ने जाएंगे तो उसमें उनका एक्सपेंसेस उतना ज्यादा होता है। बाकी 100 को भी पकड़ते हैं, बारी बारी से वसूल लेते हैं उनसे, वन टाइम पेमेंट होता है सब्सक्रिप्शन। गवर्नमेंट हर चीज कमाने के लिए नहीं करती है।
गवर्नमेंट का बहुत सारे एंगल रहता है, सोशल सर्विस देश को चलाने वाला बहुत बड़ा एंगल है उसमें, हर चीज कमाने के लिए नहीं होती है गवर्नमेंट की। नहीं तो जैसे अभी कोरोना टाइम में एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट बोला नीरज ने कि आज कोविड-19 में जो क्राइसिस आई तो रेलवे को सारा डिप्लॉय किया गया कि खाना सप्लाई करने के लिए, ताकि देश में भूखमरी नहीं हो, दवा सप्लाई करना है तो रेलवे के, तो गवर्नमेंट कभी कभी कुछ सेक्टर्स को अपने कंट्रोल में रखती है। उसका सेंस ये बनता है कि हेल्थ केयर क्राइसिस हो, वॉर टाइम में रेलवे से सारे सोल्जर्स यहाँ से वहाँ जाते हैं तुरंत, तो हर कंट्री को अपने सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए भी कुछ इंडस्ट्री को अपने हाथ में, या जैसे कि एयर इंडिया को भी गवर्नमेंट अपने हाथ में क्यों रखती है, क्योंकि वही एयर इंडिया और हर कंट्री में उनका एक जो नेशनल एयरलाइंस होता है, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को या कभी उनके डिफेंस फोर्सेस के लिए वो काम आता है। तो चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे एयरलाइंस या रेलवे, गवर्नमेंट का कंट्रोल कभी कभी सेंस बनता है, लेकिन बेटर ये है कि गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहे पॉलिसीज का और ये करने का, बट ऑपरेट कराए गवर्नमेंट प्राइवेट से, क्योंकि प्राइवेट से एफिशिएंट ज्यादा होता है। दैट्स माय एब्सोल्युटली सही बोले अतुल जी, एकदम सही बोले कि ऑपरेशंस हमेशा अगर प्राइवेट के पास रहे और सरकार के पास मतलब रेगुलेटर्स, जैसे एक प्लेटफॉर्म होता है ना, कभी भी जैसे ओयो हो गया, जोमेटो हो गया, ये वगैरह प्लेटफॉर्म, तो सबसे बड़ी उबर जब लॉन्च किया था, उबर ब्लैक, आई रिमेम्बर इन यूएस, उसको सबसे बड़ी चैलेंज फेस करनी पड़ी थी रेगुलेटर्स से, एंड दे यूज्ड टू लिटरली ट्रैक उबर कार्स, एंड उबर भी वो वॉजनियाक जो उबर का सीईओ था, he literally used to fight with them. वो सीधा he used to tell that F off straight away to the government regulators. He tweeted that, I remember still. And what he did was Wozniak, उसने गवर्नमेंट मतलब बीच में ऐसा हो गया था कि यूएस के रेगुलेटर्स उबर ब्लैक पे चढ़ते थे, एंड दे यूज्ड टू अरेस्ट द ड्राइवर्स फॉर दैट बिकॉज दे वर नॉट फॉलोइंग रेगुलेशंस, दे वर मतलब लोकल वहां के जो टैक्सीज थे उसको इश्यूज हो रहे थे ड्यू टू उबर ब्लैक एंड ऑल, बट उबर फॉट इट, एंड उबर ने ऐसा कर दिया मार्केट कि पीपल स्टार्टेड ओनली उबर, एंड उसके बाद गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था rather than to adopt Uber, because Uber had at that point of time I would say कुछ मिलियन डेटाबेस था Uber के पास, जो सबसे बड़ी एसेट थी। Uber के पास कोई और एसेट नहीं था, ना गाड़ी था उसके पास, ना ड्राइवर था उसके पास एक एसेट था, दैट इज डेटाबेस। सो ऑल ये कुछ माइक्रो एस्पेक्ट्स हो जाते हैं जो प्राइवेट कंपनी को ना बहुत पावरफुल बना देती हैं। तो गवर्नमेंट ये सब चीजों में ना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करेगी कि जैसे यूएस ने गलती की है ये उबर के साथ, सो गवर्नमेंट, आई वुड सजेस्ट इंडियन गवर्नमेंट नॉट टू डू सच मिस्टेक्स अहेड। या इसमें जैसे एक बोलना चाहता था, बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि कुछ चीजें यूटिलिटी बन जाती हैं, तो जैसे उबर जो है वो यूटिलिटी बन गई, पब्लिक एब्सोल्युटली, यस प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करे, पब्लिक करे, बट इट हैज चेंज द स्टेटस, इट्स नॉट अ लग्जरी और ऑप्शनल, लाइफस्टाइल चेंज कर दिया पूरा, यूटिलिटी बन गया। तो उबर के अगेंस्ट सरकार भी पंगा नहीं ले सकती है, इस तरह के जो भी यूटिलिटी बन जाए। एग्जैक्टली, मतलब लाइफस्टाइल चेंज कर देता है। तो ये होता है ब्रांड। तो brand, as Hari ji said that when it comes to legendary brands like SBI, Bank of India, ठीक है, बड़े brands, IOCL, HPCL, government brands, then then DRDO and other brands like Nalco and all. So what do? उनके सिस्टम बहुत सिंपल है, वो अपने आप को एज अ पेड़ जैसा समझते हैं। उनका जो रूट है वो बेसिकली उनका डिजाइन, जो उनका स्ट्रक्चरल डिजाइन है और उनके एम्प्लॉइज पे बेस्ड है। उनका जो स्टेम है वो उनका टेक्नोलॉजी है, उनका एनवायरनमेंट है, उनका कस्टमर सर्विस ग्रुप है। I beg to differ from it. SBI को छोड़ के किसी भी गवर्नमेंट बैंक के पास कोई स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी नहीं है। यूको जैसे बैंक में आज भी सारा कागजों पे, फाइलों पे काम होता है। सबसे बड़ा फैक्टर, अगर फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा फैक्टर ट्रस्ट है। जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो ट्रस्ट है, क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग है। फाइनेंशियल सेक्टर में ब्रांडिंग कहीं ना कहीं फेल हो जाती है एक पॉइंट पे आके, क्योंकि वहां पे ट्रस्ट सबसे बड़ा काम करता है। I would differ from that, Neeraj. To be very honest, right now, Bank of Baroda is the most technologically advanced bank in the government scenario. That's why they ordered the merger. Honestly, they have invested a lot in blockchain in securing their transactions. They are investing a lot in AI as well.
many banks, I would say Bank of India has recently invested a lot in transforming their ERP structures in technology. So yes, banks are doing a lot in technology, but yes, Indian government banks are very slow in investing in fintech technology, which they should have invested a long ago, like Lloyds and all have done in England a long back. So yes, as I was saying this, so they take it as a tree completely, Hariji. So like leaves and fruits are basically customer experience and loyalty, which they get very easily being a government company. And customer experience के लिए उनको कभी चिंता करना नहीं पड़ता है, because customer अपने आप आता है, उनको experience देने का जरूरत नहीं है, because they are mentally prepared about the experience they will get over there. So they all focus on loyalty, what is there. And so the second factor is very big, very important. And coming to SBI, so trust is very high in case of SBI. People trust SBI a lot. If you call any insurance, private companies also, LIC is the best name, like in government. So anyone insurance means LIC, or bank account is SBI. So that is become a brand for them. Exactly. उसके पीछे एक और एंगल I would like to add that कि SBI क्या था ना कि बैंक जो होते हैं they will open a branch only जहाँ पे उनको sufficient लगता है कि business हो रहा है, transaction हो रहा है. अब गांव में अगर बैंक चाहिए तो कोई बड़ी बैंक भी they won't open बैंक in गांव, but SBI आप जाओगे पूरे इंडिया में फैला हुआ है, तो वहाँ पे वो पब्लिक सेक्टर वाला यूटिलिटी वाला सर्विस आ गया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में है. द अदर थिंग इज कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी है, तो बाकी सारे बैंक जो बैंक्रप्सी बीच में जो हुआ था, क्या कहते हैं वो राणा यस बैंक, अच्छा यस बैंक, हाँ, तो यस बैंक को बचाना था, जो भी करना था ना, तो गवर्नमेंट भी एक बचा के रखती है कि चलो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हो, तो वी नीड टू हैव समबडी. तो एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्वियसली है, वो जितना चाहे नोट छाप के दे देगी, और दूसरा को उनको एक बैंक भी चाहिए होता है, तो उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यूज करते हैं. तो दे यूज दैट. तो LIC सर इस टाइप के सिनेरियोज में जो काम करता है, LIC करता है सबसे बड़ा काम. वो एक ऐसा कैश रिजर्व हमेशा गवर्नमेंट के पास है, जहाँ पे भी कुछ भी डूबता है सबसे पहले LIC को खड़ा कर दो वहाँ पे बचाने के लिए. बिल्कुल. और LIC इज अ बिगर इंश्योरेंस कंपनी देन मोस्ट big multinational insurance company in the world. मतलब दुनिया के टॉप मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज में आएगा LIC और इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. मतलब जो इंडिया के स्केल बहुत बड़ा एडवांटेज हो, सेम जी चाइना के लिए भी, तो उनके भी जो 4-5 जो बड़े कंपनीज हैं, तो उनका स्केल बिलियन यूजर वाला बेस है. तो एवरीथिंग दे डू इज एट सच अ बिग स्केल कि बाकी छोटे मोटे जब बैंकिंग सिस्टम को बचाना हो या इंश्योरेंस सिस्टम को बचाना हो, तो यू नीड SBI और यू नीड LIC एंड दोस थिंग्स. और जैसे कि सरकारी के लिए क्या कहते हैं, पुराने जमाने में गवर्नमेंट का BSNL हुआ करता था टाइप. राइट. आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं. सो नॉर्मली हम लोग जब बिजनेस में रहते हैं, तो देयर इज अ थिंग व्हिच वी फोकस ऑन बेसिकली इज फंक्शन. ठीक है, प्रॉफिट, वॉल्यूम, मार्जिन वगैरह ये सब चीजें देखते हैं, बट हम लोग एक चीज भूल जाते हैं, वो है सैटिस्फैक्शन. सो हम लोग जब सैटिस्फैक्शन का बात करते हैं ना, तो सैटिस्फैक्शन गवर्नमेंट is a only one sector जहाँ पे satisfaction is the least thing which is there taken into concern. Expectations are the least thing that is taken into concern, but what they take into concern is like delivery कितना अच्छा से हो रहा है, कैसा हो रहा है. अब delivery में ही corruption आती है basically. If we see a starting from a road contractor to a contractor who is supplying a software to any government company, or even a computer supplier to it, or even electrical repair wala. So in terms of delivery point पे हर एक business का touch point होता है government पे. So जो delivery वाला touch point है, वहाँ पे corruption आती है, क्योंकि transaction होती है with the purchase department, with other people over there. Sales and purchase की transaction बहुत ज्यादा होती है, और वहाँ पे corruption जब आती है, वो entire cycle को impact करती है, that is production. क्योंकि ये लोग तो पहले बना हुआ नहीं रहता है, tender पास होता है, फिर बनता है product. So तहाँ और delivery पहले ही दे चुके होते हैं, क्योंकि commitment पहले ही हो चुका होता है. So वहाँ पे corruption की पूरी cycle start होती है. Sure. Okay. We have 1 minute left for today. Any last comment anyone has? I would like to one more comment on that if I can, Vishal. And that's on the consulting companies. तो वहाँ भी काफी monopoly type situation है
कि कहावत है ना कि nobody gets fired for hiring McKinsey और KPMG और Deloitte वगैरह, तो वहाँ पे इनकी मोनोपोली बहुत ज्यादा है कंसल्टिंग कंपनी, जो टॉप बिग 4 या बिग 6 को बोल लीजिए, तो उनका कंसल्टिंग, कोई भी गवर्नमेंट का जो काम होता है तो गवर्नमेंट सब कंसल्टिंग कंपनी को देती है, फिर कंसल्टिंग कंपनी वो जो बाकी वेंडर्स को स्क्रीन करने का काम, असर करने का काम करते हैं। कोई बहुत बड़ा IT प्रोजेक्ट है तो आपने दे दिया मान लीजिए KPMG को या Deloitte को दे दिया, अब ये लोग बाद में फिर ये बाकी जो कंपनीज हैं वो छोटी कंपनी जो है काम कराएंगे, वो चलिए मान ली छोटी कंपनी क्या बड़ी कंपनी भी उन्होंने TCS से काम करा लिया या HCL से काम करा लिया, तो एक ब्रांड बनी हुई है कि McKinsey काम कर रही है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के टॉप लोग का उन्हीं से रिलेशन है। और उसमें करप्शन वाला एंगल भी डालता हूँ मैं, सॉरी आई डोंट वांट कि गवर्नमेंट के लोगों को काम कराना है तो क्या कराते हैं बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज, कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी इवेंट्स कराते हैं, उनको घुमाते हैं फिराते हैं, बिना कोई ब्राइब नहीं देते हैं, बट आप किसी लग्जरी होटल में को आए हो, 7 स्टार होटल में आए हो या ब्राजील में रियो में या न्यूयॉर्क में घुमा रहे हो, कॉन्फ्रेंस करा रहे हो, तो इनडायरेक्टली वो एक तरीका है। और दूसरा है कि कंपनी में मुझे काम कराना है, और मैंने झारखंड गवर्नमेंट के साथ काफी क्लोजली काम किया था जब KPMG, Deloitte, EY सब काम कर रहे थे। I beg to differ. किसी सरकारी ऑफिसर, किसी सरकारी से काम कराना है तो उसके बेटे या बेटी को एक इंटर्नशिप दे दो, कुछ प्रोजेक्ट दे दो, इंटरनेशनल असाइनमेंट दे दो, तो काम नॉर्मली हो जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में कुछ एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, बोलिए आप। मेरा कुछ पॉइंट ऐसा था कि अगर इफ दे आर सो कॉम्पिटेंट, सो व्हाई गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर अ बैन ऑन Deloitte and PwC already. PwC after the Satyam scam, we did banned PwC for a particular number of years, right? Exactly, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। तो बैन लग गया क्योंकि इतने सारे जो प्रॉब्लम हुए और इतने ऑडिटेड थे वो सारे, सत्यम हो या बाकी जितने भी बहुत बड़े बड़े जो बैंक्रप्सी हुए, जो फ्रॉड्स हुए, पता चला कि वो तो एक वन ऑफ द बिग 4 ने ऑडिट किया था और फिर भी नहीं पकड़ा। उनका काम ही था ऑडिट करके पकड़ना, और फिर भी उन्होंने नहीं किया, तो वो जो ऑडिट करके हाईलाइट नहीं किया था, हाईलाइट नहीं किया। व्हाट हैपेंड, ऑडिटर क्या किया है, ऑडिट में आया है रिपोर्ट, क्या किया है उसको फाइल में दबा दिया था बेसिकली, और समथिंग हैज हैपेंड, हाईलाइट नहीं किया था शायद, और रिपोर्ट में कुछ और तरीके से, या क्या होता है ना, बहुत जन वर्ड्स के साथ खेल देते हैं, और वो वर्ड्स में ऐसा खेलते हैं ना कि मतलब लगेगा कि हाँ हाईलाइट नहीं हुआ है या फिर कुछ, दे प्ले द वर्ड्स वेरी स्मार्टली, सो दीज थिंग्स लाइक मैटर अ लॉट इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है हाँ कि वर्ड से खेला हुआ है, कि वो पैराग्राफ बदल दिया है, कुछ और कर दिया है। या बुलेट, कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं पढ़ता है, नीचे में अपेंडिक्स नहीं पढ़ता है, तो अपेंडिक्स में डाल देंगे, नीचे स्मॉल कोट्स में डाल देंगे। एग्जैक्टली, those things are there. Enron scam is one big example कि बड़े-बड़े दुनिया के लोग इन्वॉल्व थे, McKinsey से लेके सारे लोग इन्वॉल्व थे, बट Enron का जो स्कैम हुआ, Enron एनवायरमेंट वाला, तो और इवन ILFS का भी जो स्कैम हुआ है, ILFS क्राइसिस, या Deloitte is involved. So माइक्रो ऑडिटिंग करने पे Deloitte को मतलब जिम्मेदार ठहराया गया था, मतलब, but still I don't know what the government is doing and what the committee is doing. Just उदय तो गवर्नमेंट और करप्शन तो साथ साथ ही चलते हैं, तो वो पूरे दुनिया में, तो उसका मेन तरीका है कि चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को पकड़े, कि मान लीजिए कि कल को फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ फ्रॉड हुआ, किसी ने क्या बैंकिंग सेक्टर में, बट दूसरे जो गवर्नमेंट के जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने जाके डायरेक्टरेट ने उसको पकड़ लिया, तो चेक्स एंड बैलेंसेस इन माय व्यू इज द ओनली ऑप्शन कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की ऑडिट करे। आई वुड से अतुल जी, चेक्स एंड बैलेंसेस कहाँ से आती है? लाइक ये जो बड़ी कंपनी होती है या फिर गवर्नमेंट हो गया जैसे सत्यम एंड ऑल, दे डिड नॉट हैड ERP इन प्लेस, ERP नहीं था उनके पास, एंटरप्राइज कुछ नहीं था उनके पास, सब कुछ डिस्क्रीट था, रादर देन कंपाइलिंग इन वन प्लेटफॉर्म, वन ERP एंटरप्राइज रिसोर्स एक प्लेटफॉर्म में लेकर आते हैं, उस पे अलग अलग स्ट्रक्चर देते हैं, उसको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उस पे लर्न अलग हो गया, उस पे अलग प्रोक्योरमेंट अलग हो जाता है, उस पे आप supply chain alag hota hai. So ERP has its own characteristics. So if an organization does not has ERP properly structured and in place,
then these loopholes come, there will be cracks, and वो cracks के साथ खेलने में बहुत इनको आसानी हो जाती है फिर. So जो checks and balances, ये जो पॉइंट आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट, सिस्टमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस ERPs एंड IT सॉल्यूशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि सिस्टम्स में प्रॉब्लम पकड़ना आसान हो जाए, कि इतनी कॉम्प्लेक्स होती है सिस्टम्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड इतनी सारी चीजें, कि एक ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कॉम्पिटेंट है, ईमानदार है, फिर भी पकड़ना बहुत मुश्किल है unless he or she has that they have the system backing to support it, कि तुरंत पकड़ा जाए. और दूसरी जगह रेगुलेटरी ऑडिटिंग, जो सार्बन-सॉक्सली जो लॉ पास हुआ था यूएस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. SOX कंप्लायंस, तो SOX कंप्लायंस टाइप की चीजें काफी बढ़ते गई पूरी दुनिया में. जब पता चला कि पूरी दुनिया ही बड़े-बड़े लोग रिस्क पे हैं, बड़े-बड़े दुनिया की बैंक्स बंद हो जाएंगी, इकोनॉमिक सिस्टम बंद हो जाएगा, तब उन्होंने SOX बनाया. बट SOX के लिए भी उपाय निकाल लेते हैं लोग, बट इस तरह के रेगुलेटरी सिस्टम्स एंड देन द टेक्निकल सिस्टम, दोनों का. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ह्यूमन एलिमेंट. ह्यूमन एलिमेंट को पकड़ना किसी भी सॉफ्टवेयर द्वारा पॉसिबल नहीं है, वो बहुत हार्ड प्रॉब्लम टू क्रैक. सर ये तो कंप्लायंस और ये तो कंप्लायंस की बात हो जाएगी फिर इस पे सर. मतलब आई वुड से ह्यूमन एलिमेंट्स को कंट्रोल के लिए सर 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है for a big brand or any company as in such. I would say one is the compliance, second is the principles, and third is the what we call is your regulations, that is human. When a person is hired, the guidelines that is stated to him or her during induction for maintenance of for being an employee in the company. So ट्रेनिंग के समय बहुत बार उनको साइन करना पड़ता है, पेज बाय पेज. ज्यादा लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, पता चलता है कि उन्होंने पढ़ा नहीं, सीधा क्लिक कर दिया. बट वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का, कि हर पेज में उनको बोला जाता है कि यू आर पर्सनली लायबल फॉर इट. एंड द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि द CEO इज हेल्ड अकाउंटेबल. आप ये नहीं बोल सकते कि मैं KPMG के एक जूनियर किसी छोटे से ऑडिटर ने, छोटे अकाउंटेंट ने गलती कर दी. द CEO इज डायरेक्टली हेल्ड रिस्पांसिबल कंपनी के साथ. दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे कि डेलॉयट के जो CEO हैं या KPMG के जो CEO, तो दे विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल इन द कोर्ट. तो वो उसके थ्रू भी इन्फोर्समेंट आसान हो जाता है, कि जब बड़े साहब का जेल जाने का चांस है, तो फिर वो दे विल मेक श्योर कि काफी पैसा खर्च करेंगे, ट्रेनिंग में खर्च करेंगे. दे देमसेल्फ मेक श्योर कि मतलब कि प्रॉफिट के जगह पे कंप्लायंस को और उस चीजों को भी इंश्योर किया जाए. डू यू एग्री ऑन दैट? Yes, but I think we can continue this in another session. Saurav had some comment. Saurav, छोटा comment है, बड़ा comment है, या अगले बार बोलोगे? मेरा कोई comment नहीं है. मेरा बस एक I really want to appreciate Dev Jyoti. I'm highly impressed by the way he puts his points. बहुत ही structured approach है. मतलब he's a perfect consultant. तो कंसल्टेंट का एक मैंने आपकी तारीफ की, अब थोड़ी सी बुराई भी कर देता हूं. श्योर सर, फीडबैक अजाइल मेथोडोलॉजी में हमेशा चलता है. तो मैं तारीफ कर दिया, बुराई कर देता हूं, वरना मेरे पेट में दर्द हो जाएगा. बुराई नहीं किया आज मैंने किसी का. तो बुराई ये है कि बोला जाता है ना, कंसल्टेंट लोग ऐसा बोलते हैं ना, समझ भी नहीं आता है और अपना बात रख देते हैं. लेकिन on a serious note, very very impressive, Dev Jyoti, and I wish you all the best. Thank you, sir. Sir, we are planning a lecture series kind of thing with LWT. I have given a proposal to Vishal sir for that. Like I'm free on Sundays, so I used to teach in my B school to my juniors, like strategy and branding and sales. Basically, I have experience in sales training with Vodafone, for training around like more than 400 people in Vodafone. फिर मैं ओयो का सेल्स ट्रेनर था, wherein I have achieved like more than 23% उन लोग अचीव करते थे सेल्स. तो I changed some strategies over there in sales. We were able to achieve 27 से 30% over there in sales. So sales training बहुत, like I have keen interest in sales training. मैं यहाँ भी KPMG में भी ERP sales की training देता हूँ. So I was talking to Vishal sir about it, that we can have something like this. Sure. And it's need of the hour also. I think. So please make me your student. I mean, we all are his student in a way. I mean, sir, विशाल भैया, विशाल सर और मेरे स्कूल में ऑपोजिट है. विशाल सर आइडल है यार, IIT निकाले थे अपने LWT एकेडमी में. फीस
नहीं सर, it is all like I'm open to everyone. Personal branding. तो अभी अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन, I need to share one experience. So while I was in Hyderabad, so I got a chance to get interviewed for Deloitte for Deloitte, and I don't remember the post exactly, but it was some type of consultant post only. And the thing was, like, every time they call for interview, they don't disclose the results. So they'll just say, yeah, we'll let you know. And it is same answer for all. Consulting company है, बता तो दिया. I let you know. और उसके बाद मैं शेयर करूँगा. I have worked for TCS for ERP solution, and उसके बाद में I have worked for a consulting company as well in Mumbai. So it is not a big four or something, but it's a small Indian based consulting firm. So that is the thing. So वहाँ पे मीन्स इंटरव्यूज होते हैं और उसका रिजल्ट भी नहीं बताया जाता है. सो सर ऑनेस्टली बताएं, मतलब हम लोग इंटरनली एक चीज आपको बताते हैं, whenever like anyone in the world applies for a consulting job or in consulting, I always, like in my college right now, the placement seasons is going to start. Lot of my juniors and all call me like, भैया क्या करे CV में, क्या डाले क्या नहीं डाले. I always tell them that put spikes in your CV, that is show your failures. Sir, honestly, I have 56% in my 12th grade and 80% in my 10th, and then again in BTech I have 80%, and in MBA I have a 94. So it is like what I tell it was a failure. मैं पढ़ा नहीं था 12th में, मैं दोस्त लोगों के साथ घूमने जाता था, मैं जुबली पार्क में बैठ के गप्पे मारता था. So नहीं भी जाते होगे ना तो कहानी तो बना ही सकते हो. सर मतलब फेलियर है लाइफ में, तो failures, showing failures is very important, that how we cope up with the failures in life and then how we come up. So that's how like we see spikes in the candidate CV a lot, because हमें क्या होता है ना, हमें बहुत walls से टकराना पड़ता है. Like if we pitch to 10 customers for a product, नॉर्मली एक से रिस्पॉन्स आता है. सो फेलियर्स हैंडल जब तक नहीं करना सीखेंगे सर, वी कैन नॉट और एक्सेप्ट. ये सर हाँ. हरी जी आप सच बोलते हैं, इसलिए आपका नहीं हुआ. अरे इंटरव्यू हुआ ही नहीं. इस पे भी बात कर रहे हैं. आप सच्चे हैं. एप्टीट्यूड हुआ था सिर्फ, इंटरव्यू नहीं बात. एप्टीट्यूड क्लियर के बाद में भी बुलाया नहीं. हुआ ना. नहीं तो रीजन तो बहुत सारा होता है. आई थिंक तो हम लोग अपने आप को दिलासा भी देते हैं बहुत तरीके से. डेलॉइट का नहीं, बॉश का भी यही सीन है. बॉश में भी मैं गया था बैंगलोर में. सो आई डोंट नो, मेरी शक्ल पसंद नहीं आई एचआर को, या बस आप यही मान लीजिए ना, इसमें क्या है. ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन रहेगा. एक्चुअली मेन चीज वही होता है. अब शक्ल हो या क्या हो, जो आपको जो इंटरव्यू लेगा ना, ये जो हायरिंग मैनेजर जो है, तो उसको आप पसंद आए नहीं आए, वो मेन चीज है. अब आपको शक्ल पसंद नहीं आए, कि आपकी आवाज पसंद नहीं आई, कि उसका मूड अच्छा नहीं था, घर में झगड़ा करके आया था, रात में सोया नहीं था, उसके एक्सीडेंट हो गए थे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पता नहीं चलता है. लेकिन मेन चीज यही होता है कि सामने वाले को, हायरिंग मैनेजर को आप पसंद आना चाहिए, कि उनको लगे कि मेरे लिए उज्जवल ही मेरे सारी समस्याओं का समाधान है, या सेजल है, या जो भी है. तो जिस दिन उनको ये लग जाए ना कि मेरी समस्याओं का समाधान यही है, कि अमन है मेरे पास, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा. अच्छा ही पता चलेगी हायर करने के लिए. नहीं अतुल जी एकदम सही बोले, पता चलेगा ना. ठीक है, सेल्स तो हो गया ना उस वक्त. इंटरव्यू में लगना चाहिए, फीडबैक लूप है, लगना चाहिए आपके बेस्ट फ्रेंड हो. उसके बाद हायर करने के बाद पहला आपका प्लान होगा कि कैसे आप उनकी पोजीशन आप ले लो. जो झूठ बोला उसको सच करना होगा आगे चल के, पूरा झूठ नहीं चल सकता. सर इंटरव्यू में तो हम अपने आप को बेच ही रहे हैं सर, हम अपने आप को तो बेच ही रहे हैं. इंटरव्यू में ये बेचिए कि उनको आप मान लीजिए कि वो कोई डेलॉइट में सीनियर मैनेजर है, तो आपको डायरेक्टर बनाने का रास्ता आप है, या डायरेक्टर है. यस सर, यस ये आप सीईओ. यस, उनको सपना दिखाना है, उनको सपना दिखाना है. अमन का गोल, लाइफ का गोल, या उज्जवल का लाइफ का गोल. सर यू सपोर्ट एथिक्स. बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, इसमें गलत क्या बोल रहा हूँ? नहीं देखो, डोंट प्रोवोक सेजल नाउ.
अब लोग प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो इट्स गुड। नहीं, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि आपके टीम में हो, अगर मान लीजिए कि धोनी कैप्टन है, तो विराट कोहली हो या बाकी जो प्लेयर, जिस दिन वो धोनी को ये फील करा दे कि धोनी तुमको वर्ल्ड कप मैं चैंपियन बना दूंगा, तो धोनी भी खुश और वो भी खुश, उसमें गलत क्या है, ये भी नहीं समझ में आता। अपने अतुल टीम सर के एक बात लीडर बताइए, अतुल सर इंटरव्यू चल रहा है डेलॉइट में, और डेलॉइट में 2 इंटरव्यूअर हैं और दोनों मोहन दास जी का बहुत तारीफ कर रहे हैं। फोटो लगा हुआ है पीछे। फोटो लगा हुआ है पीछे। आप बताइए आप क्या करिएगा? सच बोलिएगा। तो आप अगर मैं हूँ तो आप मोहन जी के टॉपिक पे बात नहीं कीजिएगा, बाकी चीजों पे बात कीजिएगा। और अगर आप मान लीजिए नहीं, वहाँ फोटो लगा हुआ है उनका, फोटो लगा हुआ है और लिखा हुआ है इंस्पायर्ड लीडरशिप। फोटो तो बहुत लोग लगा देते हैं। फोटो हो सकता है कि आज के जमाने में मोहनदास के हो सकता है कि श्री राम का फोटो लगा दे या अयोध्या के मंदिर का, तो वो तो अलग अलग चीजें है। बट आपको चूज करना है कि आप अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किए हुए ना सामने वाले को उसको थोड़ी जो उसको मक्खन लगाना है। मैं बताऊं कि सामने वाले को ये फील कराना है कि यू गेट हिम और हर, आप उनकी प्रायोरिटी समझ गए, उनको समझ गए और उनको सक्सेसफुल बनाना आपका मिशन है और होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। कि आप अपने बॉस को सक्सेसफुल बनाएंगे तो अब बॉस आपको भी आपका भी ख्याल रखेगा और कंपनी का भी तरक्की होगा, सबका तरक्की होगा। नथिंग अनएथिकल अबाउट दिस। नहीं, इसको सपना दिखाना इज ओके। आई थिंक बच्चा लोगों को भी सपना दिखाया जाता है, एथिक्स पे इसको तोला नहीं जा सकता एग्जैक्टली। और सपना दिखा के ही सपना पूरा भी होता है। Atul sir, I was just kidding. It was a sarcastic Yeah, comment. everybody is kidding, but at times I think kidding becomes and adulthood. very long Sejal, I was 11:30 के बाद किडिंग ही होता है। 11:30 के बाद कुछ चल रहा है तो वही फिर मैं वो बोलने वाली थी किडिंग वाला फेज आ जाता है, तभी ट्रैक होता है। उसके बाद थोड़ा वो क्या कहते हैं आफ्टर आवर्स हो जाता है। Level hours. आज पता है विशाल क्या हुआ? आज देव ज्योति और हरि जी ने इतना कन्वर्सेशन साथ में किया कि मुझे लगा इनको ब्रेकआउट रूम में भेज दिया जाए। वो भी कर लेंगे, वो तो इंडिविजुअल 1-to-1 सेशंस भी करा देंगे कभी। चलिए ठीक है, ओके। आई थिंक हम लोग बहुत आगे ओवर टाइम हो गए, तो या विल डू मोर सेशंस। आई विल लेट यू नो गाइस कैसे करेंगे, कब करेंगे। ठीक है, प्रोबब्ली संडे को करेंगे, बताते हैं। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।